Hello, it's me Anant. In this lecture, I am explaining the class 10th poem Dust of Snow, which is written by the famous poet Robert Frost. So, first I tell you about the poet, then I will explain the poem. So, Robert Lee Frost was one of the most popular and respected American poet of 20th century. He was born in 26th March 1874 in San Francisco, USA, and his work was initially published in England before it was published in America. Later, Frost and his wife Eleanor Miriam moved to England in 1912. Here, Frost met and was influenced by such contemporary British poets as Edward Thomas, Robert Brooke, and Robert Graves. He also published many kinds of work, and he was awarded the 4 Pulitzer Prize for his poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont, which is a place in America, Vermont, Vermont. Uh, so Frost also published so many kinds of work like The Boy's Will, which was appeared in the year of 1913, then The North of Boston, which was appeared in 1914, then very famous work of Robert Frost, New Hampshire, which was appeared in 1923, New Hampshire, Hampshire, then also Staplebush, which was appeared in 1947, and last in the Clearing, which was appeared in 1962. So this is all about the poet. Now let's move to the poem, and I tell you the introduction of this poem. About the poem, this poem actually now known as the Dust of Snow by the one and only famous poet Robert Frost, is said to have been the first published with the title Faber. This poem is first published with the title name Faber, Favor. इस नाम से ये पहले पब्लिश्ड हो चुका है. इन दिसंबर 1920 में ये पब्लिश्ड हुआ था. एंड इशू ऑफ द लंदन मर्करी, एक लंदन में मर्करी मैगजीन था जिसमें ये पब्लिश हो चुका है फेबर के नाम से. देन दिस पोएम वाज लेटर रीप्रिंटेड अंडर द टाइटल स्नो डस्ट. देन दिस पोएम इज अगेन रीप्रिंटेड इन by the title of स्नो डस्ट इन द जनवरी 1920. 1920 में ये पोएम फिर से लॉन्च किया गया था, फिर से इसे प्रकाशित किया गया था, और वो येल रिव्यू एक पत्रिका थी उसमें इसको जगह मिली थी. देन फाइनली इट वाज कलेक्टेड इन द फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम बाय द फ्रॉस्ट इन टाइटल न्यू हैम्पशायर. लेकिन लास्टली इस पोएम को इन फ्रॉस्ट के कलेक्शन में जगह मिली थी, जो कि फेमस पोएट्री का कलेक्शन था जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर. दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1923, जो कि 1923 में पब्लिश किया गया था. सो लेट्स मूव टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. Actually, this poem is very short and looking like 8 line of the poem, but the meaning of this poem is very grave. Between the lines, the meaning of the poem is very grave. So let's start this poem. The way a crow sucked down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So you can also think that how this poem is very short and only each line contains only 4 or 5 words and nothing else. So you can also think how this poem is very grave in attitude. So let's explain the poem The Way a Crow. So poet was explaining a winter season of America. During the winter season of America, he was traveling to the forest, and there are huge snowflakes on the trees, on the branches of the trees. यानी सारे एक ऐसे विंटर के समय में पोएट ट्रेवल करते हैं वुड्स में, जंगल में, और वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ जो है वो बर्फ़ पूरा घिरा हुआ है, पूरे पेड़ पौधे को ढका हुआ है.
So what happened when the way a crow sucked down on me? So what happened? Poet was traveling near to the tree. Then sudden a crow sat upon a branch of a tree. तो उसी समय क्या होता है कि एक क्रो, a kind of crow we can also say this is a represented as a bad omen. एक निगेटिव एनर्जी के रूप में क्रो को सिंबलाइज किया जाता है हमारे कंट्री में और ऑल्सो इन द अदर नेशन टू. सो सक डाउन ऑन मी, और उस क्रो के उस ट्री पे आके बैठने से वॉट हैपन द डस्ट ऑफ स्नो. Dust means a flakes, a small particle of something. So flakes of the snow, उस डाल पे जो स्नो पड़े रहते हैं तो वो क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. उस दिस द ट्री इज़ हेमलॉक, अ वेरी पॉइजनस ट्री ऑफ अमेरिका. ये एक हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री बोला जाता है. तो उसके बारे में वो बताते हैं कि उस पेड़ पे आके, उस ट्री के ब्रांच पे आके वो क्रो बैठता है, और जिससे वो क्या होता है, डस्ट जो है, उस स्नो फ्लेक्स जो है वो पोएट के ऊपर गिरता है. जो क्यों? बिकॉज पोएट वॉज ट्रैवलिंग टू दैट वे एट दैट टाइम. उस टाइम पे पोएट ट्रेवल करते हैं, उस विजिट करते हैं उस ट्री के नीचे से. देन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और वो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है क्रो के आने के बैठने से उस पोएट के ऊपर गिरता है, उस पोएट की हेड के ऊपर, उनके ऊपर गिरता है स्नोफ्लेक्स. देन व्हाट हैपेंड? सो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. So has given my heart, उस सडन हैपनिंग से, जो भी कुछ होता है वहाँ पे उस सडन हैपनिंग से, हैज़ गिवन माई हार्ट, पोएट के माइंड को, उस पोएट के हार्ट को चेंजिंग महसूस होता है, और चेंज ऑफ मूड, और उनके मूड में चेंजिंग फील होता है उनको. एंड सेव्ड सम पार्ट, और वो ऐसा लगता है कि उनका कुछ समय जो है, कुछ दिन का, एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग दैट दैट पर्टिकुलर डे वॉज वेरी यूजलेस फॉर हिम. ही वॉज फीलिंग वेरी बोर्ड एट दैट डे. तो इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि आज का दिन मेरा बर्बाद चला गया है. बट द सडन हैपनिंग बाय द क्रो, जो भी क्रो के द्वारा उस समय किया जाता है, दैट पोएट वॉज थिंकिंग, ओनली पोएट वॉज थिंकिंग दैट दिस सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे. दिस सडन स्ट्रोक्स ऑफ द क्रो चेंज द मूड ऑफ द पोएट. उस क्रो के द्वारा जो भी कुछ किया गया उस डाल पे, जैसे कि स्नोफ्लेक्स उन पे गिरे, और उसके वजह से ही पोएट को ऐसा लगता है कि उनका जो दिन का समय था वो बच गया है, यानी सेव हो चुका है किसी न किसी तरह से. उनको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन बहुत ख़राब बीता है, और आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा उनके लाइफ में, उनके दिन में. तो ये चेंजिंग उनमें होता है, और वो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, अब वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द सडन हैपनिंग विद द क्रो. जो भी क्रो के द्वारा किया जाता है उसके द्वारा उनके मूड में सडन चेंज हो जाता है. बिफोर बिफोर दिस ही वॉज इन अ ग्रेव मूड, ही वॉज वेरी सैड. by some particular reason he was very sad, but this reason but by the crow he was now become very happy. अब वो खुशी महसूस करते हैं. That's why he say in the poem and saved some part, और इस चेंजिंग से, इस हैपनिंग से उनको ऐसा लगता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैव रूड, जो मुझे लग रहा था कि रूड मीन्स टू डिस्ट्रॉय. ऐसा उनको लगता था कि मेरा दिन बर्बाद चला गया है आज का दिन, और अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस क्रो ने, विच वॉज रिप्रेजेंटेड इन माइथोलॉजी एज अ बैड ओमेन, निगेटिव फीलिंग्स के लिए जानी जाती है. देन ऑल्सो द हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो निगेटिव. देयर इज़ नो सेंस ऑफ दिस ट्री इन एनी मोर. सो नो पोएट use this kind of tree in the poetry, in his poem, in her poem maybe. But the Frost is only one uh, poet who uses such kind of uh, things in his poem, like the hemlock tree, and then the second is the crow. No one had uses
this kind of things in in his poetry, in his poem. कोई भी पोएट जो हैं वो कभी भी इस दो चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, इसके ऊपर कोई भी पोएम नहीं लिखा है। और इसी तरह से क्रो को कोई भी यूज़ नहीं करता है। पिकॉक, हेन बहुत सारे चीज़ों को यूज़ करते हैं, बर्ड्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, बट नो पोएट had used till now this kind of things in his poem. So that's why Robert Frost was represented as a very famous poet during the 20th century in the English world. Hope I think that you like this explanation. Thank you.